Okay, so the first question, as we have discussed, it says that why question is all about why Buddha's teachings are still relevant as the solution of problems arising from modern lifestyle. Why? Because as we have already discussed that Buddha had a practical approach about life, right? He did not talk about the end result of life, either death or about the God, existence, birth, never talked about things. He talked about one thing only, that life is a process, life is a path, and result will be better if path will be better, right? As we have one definition about success, that success is not the destination, it is a process. The same, life is not counted by the end, right? Life is counted how you live the life, means the processes. So Buddha, Bhagwan Buddha or the Lord Buddha was a person who always believed upon the process of life, right? According to Buddha, if process will be rectified, the aim will be rectified also. And in today's modern society, all problems are arising due to this process or path, right? As we discuss what is about the modern life, if we are going to summarize the whole modern life in one word, that is consumerization, right? The whole system is, what is modern? Those who consume more, right? How we define the modern society? A consumer society. A modern life, the consumer's life. A modern person consumes more, right? So the whole system is about the and this consumerization is related with the desires, right? अब ये मेंस कर रहे हैं, मेंस हाँ क्वेश्चन क्या बताओ, गिव मी द क्वेश्चन 19 is not right. Doctrine of cessation of activity in designing or doing nothing, not doing little का नहीं, designing अलग है, little अलग है, right? Doing right, right? अभी मैं करता हूँ बात, ठीक है? लो किसको? So two things are there. First, it is all about desire. Second, increasing violence, right? First, unfulfilled desires, right? And for that, what is happening? Consumerization. Second, a gap between expectation and reality. Gap is growing, right? People working 24 days and night to fulfill their desires completely. Second, deviation from the lifestyle. What is in modern life? What we have? Complexities of action, right? And what you all feel about the modern lifestyle? क्या हो रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो स्ट्रेस का प्रॉब्लम क्या है? A gap between expectation and reality give rise to anxiety and depression, right? What you expect and what you get, a huge gap between both, and that is about the anxiety and depression. So anxiety, depression, design, violence, complexity of actions,
जिसको हम बोलते हैं भाग दौड़ की जिंदगी, रात दिन भाग रहे हो, रात दिन दौड़ रहे हो, एंड गेटिंग लिटिल रेयर, राइट? सो ये सारी प्रॉब्लम्स, दीज आर द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम व्हाट ईच एंड एवरी पर्सन फील्स एवरी टाइम. एंड उसके बाद में प्रॉब्लम क्या हो रहा है? कॉम्प्लेक्सिटी इनसाइड, राइट? व्हाई ब्रेकिंग थिंग्स, ब्रेकिंग फैमिलीज? क्यों व्हाई? इसके पीछे कारण क्या है? व्यस्तता, बिजनेस. बिकॉज प्रॉब्लम इज दैट वी येट नॉट फाइंड अ राइट सॉल्यूशन or a right path to live, right? How to live a life? Some people go to meditation, some to the temples, some church or mosques for one thing only. किसके लिए? Peace of mind. Peace of mind. But peace of mind is not existed going for a 1 minute or half an hour or an hour or 15 minutes meditation things. Because in a subconscious mind, what is going on every time? A dawd, a race, right? A race. दौड़ने का, भाग रहा है, running. Why so? Because you don't have a simple lifestyle जीने का. बस इसको कंपेयर करके इस तरफ और इस तरफ कौन लिखना है? क्या है? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. नहीं, आपको सिंपल एक चीज लिखना है. बुद्धा थ्रू आउट हिज लाइफ, he always talked about the practicability of life according to his own experience. We discussed that Buddha always talk about experiences what he gained during the journey of enlightenment, and how he that got that enlightenment, how he had attained the nirvana. He went to the same thing. And according to Buddha or Nirvana, this is you who can enlighten yourself. Atmadipo Bhava. So Buddha always emphasizes, first thing, on the effort of individual. Second, he always talks about the simplicity. Third, he always talks about one thing, that is desire is the problem. Right? Desire is the problem, and to get rid of desire, what you need to have a right approach, right? He always talked about right approach, and for right approach, what you need to do, whatever you are doing in appropriate way, right? Do not harm others. Buddha always emphasized on compassion, right? Compassion, which is the dire need of today's world. This modern world actually want compassion, right? Hate of violence, compassion, empathy, sympathy, general word, compassion, right? Think of others more than you. And this is the way to make a life simpler, right? Until unless your environment, your surroundings is not peaceful and calm, how you could be? Because you always interact with your surroundings, right? Though you are in peace, but what about your surroundings, right? यही बात हुआ जब when Buddha started the sermon ना. First Buddha attended nirvana. Why to tell others? You left your house for the sake of yourself, in search of truth, and finally what truth he found? That if we make right efforts to get rid of desire, we can attain the nirvana. He found that truth. Now he became calm. He sat down. Then he thought that no, I attended the nirvana, right? What about others? Right? I am the part of the society. So being a part of society, it is my duty or responsibility to convey message to others that yes, this is the way to get rid of all the problems which are result of desire, or why you people all are in sorrow, why all these things are there, because of these things. So he decided to address people, and in that address he already emphasized on one thing only: effort.
make your effort, right, in a proper way, right way. Be with the mind of non-violence, maitri, compassion, danam, right, mentality to give, not to take. So it's receive, right, donate or receive ka khel hai. So these are the things which are still solutions of the problems which arises in the life. Right? We are also living in the urbanization society. What was at the time of Buddha? The same urbanization, same economic classes, same the caste system, social division, hierarchy system, all things are the same. If we come, complexity is still more than that time. The second urbanization, civilization, all this is the civilization period. The same period is same time, same period, same anxiety, same people. Technologically enabled. They have the rich class, the poor class, the social upper class, social lower class, untouchability. Everything prevails in society now. What was at the time? Right? The rituals, desires, ambitions, everything were there. So Buddha gave a practical solution of the surrounding society, and the same society is prevailing today. So why Buddha's teachings are still relevant for the modern life? Right? Because modern life faces the same problem what they faced at that particular time. Complexity, aggression, violence, anxiety, depression, right? Desire, unfulfilled desire, a gap between expectation and reality, right? So Buddha, relevancy of Buddha's teaching is still today. So what we should include, first the problems, right? First Buddha, the significance of Buddha, right? Significance of Buddha. Question will start, answer will start with the significance of Buddha's teaching, right? First. Second point, problems. Right? Problems arising from the modern lifestyle. Third, how these teachings presents a solution. So why Buddha is still relevant. Practical answer, practical approach. Experience, simplicity, desire, compassion, right? Non-violence. All these things which are taught by the Buddha. Right? Be practical. Think of the treatment, not about the disease. वही जो चीज चल रहा है वही चल रहा है. रोग पे चर्चा करने से अच्छा है कि उसका ट्रीटमेंट ढूंढा जाए. So these are the problems. Don't discuss about the problems. Discuss about the solution of the problems. That is the way. आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स कर रहे हो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स पे कर रहे हो ना, क्या हुआ? 10 सॉल्यूशन पे भी कर लेते हैं, बजाय प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन बात करते हैं. भाई पेड़ बढ़ाओ, ग्रो मोर ट्रीज, राइट, रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस, राइट, which are hazardous for the environment. तुम इतना ही तो करना था. एंड इंडिविजुअल एफर्ट. बुद्धा किसकी बात करता है? राइट, तो इंडिविजुअल बेस पे करो ना. हर आदमी 5 पेड़ उगाए, कहे कि मैं पेट्रोल डीजल को हाथ नहीं लगाऊंगा, राइट, एंड आई विल फेवर द ग्रीन इकोनॉमी. आई विल गेट rid of plastic. I will get rid of all those things which are harmful for the environment, right? अभी एक बड़ा अच्छा वो आया था, लॉजिक आया था कि why Russia is exporting the rice, yet Russia have plentiful of lands to grow, to cultivate the rice, but he is a major importer of rice. Why so? Because Russia is intelligent than we people. Russia knows for 1 kg rice you need 6 liters of water, right? He knows the value of water rather than rice, right? So it's better to export rather than cultivate. तुम्हारे पानी के 60 लीटर की कीमत समझते हो? If I take a बिस्लरी बॉटल वाटर, कितना रेट है 1 लीटर का? कितना क्या रेट है? 20 रुपीज. 60 लीटर का कितना हुआ? 1200 रुपीज. 1200 रुपीज वाटर.
plus time consumed plus labor cost plus transport plus export duty, कितने में पड़ा तुमको कम से कम ये? 2200 से 2500 रुपए किलो। आप क्या भाव बेच रहे हैं? राइट, बढ़िया से बढ़िया 500 रुपीज, और तुमको कॉस्ट क्या आ रही है? 2500 प्लस राइस की वजह से जो डिप्लीशन हो रहा है आपको मालूम है, नाइट्रोजन, राइट? राइस कल्टिवेट फील्ड they what they do, just keep the nitrogen, emission of nitrogen again, क्योंकि राइस है, प्रोटीन है, emission of nitrogen, वो फिर प्रॉब्लम कर रहा है। सो कॉस्ट फैक्टर वैल्यू दे पीपल नो बेटर देन अस। तो धरले से वो राइस मंगा रहे हैं कि बेचो, हम करोड़ों का खरीदेंगे, बट एट द लास्ट when all the ground water which is not recharging, तब क्या करोगे? right? आपको वो 2500 रुपए किलो भी नहीं देगा, नहीं देगा। सो यही कहा ना कि द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है? बुद्धा ने कहा कि इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिकेबिलिटी, व्हाट यू एक्सपीरियंस यू नीड टू चूज दैट पाथ। You are experiencing the climate change. दिल्ली, क्या ये पॉसिबल है इतना बड़ा फ्लड आना? वो भी तब जब इस बार अच्छा गर्मी नहीं पड़ा है क्या? Did you feel summer this year? नहीं, बट फिर भी the intensity of rain, I'm not talking about the quantity, I'm talking about the intensity of rain. Intensity is not optimized now, right? आप देखो एक दिन में 100 सेंटीमीटर, 4 इंच, 10 इंच, 8 इंच, और 10 दिन कुछ नहीं, फिर 100। सो इट इज नॉट अ रेगुलर पैटर्न। अगर ऐसी बारिश एक फील्ड पे होती है, एग्रीकल्चर फील्ड पे होती है, तो क्या होगा? 4 इंच बह गया, मिट्टी निकल गई, पौधे तुम्हारे हाथ में आ गए, राइट? बट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वी आर द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंट, बट हो क्या रहा है? नथिंग। सो बुद्धा सोल्यूशन वॉज वेरी प्रैक्टिकल for the modern lifestyle. Need to have less desires, right? Because your desire is a problem, and we know the whole humanity, the Buddhist religion is all about the humanity. We always talk about humanity only, right? This religion is completely a human religion, a religion which is based on humanity. Not this extreme side, not that extreme side. It always talks about humanity. And in humanity, what it talks about? The virtues, ethical values, morality, right? Discipline in life. So it is about morality and discipline about life. And if life is based on morality and discipline, what else you require? Nothing. So this is about the question number 1, right? Now the second question, what it says, yeah, the Buddhist or the Jains do not depend upon God, right? Right? They believe to evolve a God out of man. Clear? These are the heterodox sects, right, which are not dependent on to come on earth, right, to solve your problems. For them, God, what is the meaning of God in Buddhism? No, a completely agnostic, because they do not believe in eternal soul. It means they do not believe in a God-like structure which is eternal in nature, right, beyond the space and time. As far as Jainism concerned, what they see, what is God for Jainism? Those free souls, right? And these free souls are those souls which are not eternal in nature. Not with the starting with the universe, they became free.
right? They are free. Why so? Because they distracted their karma. So according to Jainism and Buddhism, important thing is that everyone can be a god by the godly behavior, by the godly attitude. And what is that attitude? According to Buddha, what is that attitude? If someone is able to seize its desire through appropriate path, to by the following appropriate path, a person with the compassion, a person with non-violence, right? A person with the mind of fraternity, a mind to give, not to receive, that person can attain the nirvana. So don't assume that a God one day will come, yada yada hi dharma saklani bhavati bharata. It's not like that. And God came here with the humanistic form, not in God form, right? कभी नहीं आए. उन्होंने आके तुमको बताया कि life is life. A human life is full of sorrow, miserability. Just see the life of Ram and Krishna. कहीं पैदा हो रहे हैं कारागार में, कहीं पल रहे हैं, दिन जिंदगी भर राक्षसों से लड़ रहे हैं, फिर अपना देश छोड़ के जा रहे हैं, अपने परिवार को खत्म कर रहे हैं और खुद में लास्ट में खुद मर जाते हैं. और रामा पैदा हुए घर में, कल सिंहासन मिलने वाला है, आज 14 साल के लिए बाहर वन भटक रहे हैं, फिर किडनैप हो जाते हैं, वाइफ का किडनैप हो रहा है, पूर्व सबसे लड़ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, आके 2 साल शासन को नहीं हुए, पत्नी वापस गई और वो वहीं खत्म हो रही है. So life is full of sorrow. ये बात तो कृष्ण और आप उसकी बात को, but how they live the life with the sorrow or with an example, that is more important. Example what the set by these incarnation, right? Connected these incarnated to the God. हम God इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो आए, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने काम किए, those work can be done by the God only. Same by the Buddha. In later age, Buddha assumed as a incarnation, or the God for the Mahayanism is a God, right? Later he was accepted as the God. Mahavira as a God. Why? So the deed, effort made by Buddha and Mahavira, both were God-like attitude. God-like attitude means the lifestyle what they lived, simplicity, compassion, right? Appropriate path, discipline. And the most important thing, helping others, right? Helping others, किसके लिए? For nirvana, for attainment of things, right? चाहे बुद्धा का मार्ग, महावीरा का मार्ग, a path of self discipline. अगर मैं महावीरा को एक वर्ड में कहूं, a path of self discipline. महावीरा, a path of appropriation, right, correct. बुद्धा. तो फाइनली बात तो सेल्फ डिसिप्लिन की है ना. तो पूरा अगर मैं उठा के कहूं कि ये बात है, राइट? यही तो बात है, सेल्फ डिसिप्लिन. अगर इस बात को अगर वो ये कहते हैं, अगर शंकराचार्य ये कहते हैं, अगर यही बात ये कहा जाता है, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, तत्वमसि, तुम ही वो हो, द एटर्नल थिंग, राइट? सब यही तो कह रहे हैं कि तुम ही गॉड हो. सो इसका मतलब ये हो गया कि गॉड इज नथिंग. व्हाट इज गॉड? इवॉल्वमेंट ऑफ दोज एटीट्यूड, दैट कैरेक्टर्स इन अ पर्सन. इन दैट दोज हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स, Buddhism and Jainism, they both, right, what they believed, evolve a God, right? Evolve a God. कैसे किया उन्होंने? उनका एफर्ट दिखाओ. इसमें तुम्हें क्या करना है? बुद्धाज और महावीरा का जो पाथ है, बस उस पाथ पे डिस्कस करना है कि हाउ अ पर्सन कैन अटेन निर्वाणा. एंड निर्वाणा क्या है? निर्वाणा क्या है? अ पर्सन को कहां ले जाना है? बियॉन्ड एज ए गॉड, राइट? सो दे वर नॉट डिपेंडेंट के एक वहां से आएगा और तुमको पार कराएगा. नहीं, उन्होंने कहा दिस इज योर ओन एफर्ट, राइट? जो तुमको क्या बना सकता है? फ्री सोल. तुमको क्या बना सकता है? लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल, मिस गॉड.
जिसका जन्म मरण नहीं होता, जो इससे मुक्त हो जाता, वो क्या हो जाता है? गॉड। गॉड कौन है? जो इस साइकिल से परे है, बियॉन्ड है, जो रीबर्थ बर्थ जिसका होता नहीं है, जिसमें कर्म एक्शन इफेक्ट करते नहीं है, वही तो गॉड है। तो उधर गॉड को बोलते हैं सिद्ध लोका सिद्धा, इधर गॉड को बोलते हैं लिबरेटेड, निर्वाणा। बस यही दो। और इनके लिए दे इवॉल्व गॉड फ्रॉम अ पर्सन। किसके थ्रू? एक बोलता है किसके थ्रू? अष्टांगिक मार्ग, राइट, मध्यम प्रतिपदा, पतिच्चा समुपात। एक बोलता है सेल्फ डिसिप्लिन, तपा। बस हमें वही लिखना था। दिस वॉज द आंसर ओनली when you discuss about the processes or effort made by Buddha and Mahavira towards the attainment of nirvana। बस वो क्या था? क्योंकि उनके लिए निर्वाणा ही भगवान है। क्लियर? निर्वाणा हो गए भगवान हो गए, इनलाइटेंड हो गए भगवान हो गए। उससे पूछा क्या करना है? एनलाइटेंड। उससे आगे क्या है? एनलाइटेंड। उससे आगे क्या है? एनलाइटेंड, राइट। उसने कहा यही है। जब ये आ जाएगा तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। मैं समझा नहीं सकता, तुम समझ जाओगे। तथागत से पूछा आनंद ने, इनलाइटमेंट क्या है? कि समझोगे, समझा नहीं सकते। When you will enlightened, you will realize. I cannot make you realize. बस यही इनका था। So that was the question about the Buddhism or Jainas do not depend upon God, right? It का मतलब ये नहीं कि they don't believe on God. वर्ड क्या आ रहा है? They do not depend upon God. They believe to evolve a God out of man, right? जिसको निर्वाण मिल गया, गॉड हो गया, तो निर्वाण दे दो। कैसे मिलता है? रास्ते बता दो। The next question, it says critically discuss the impact of heterodox sects on the socio politico and economic sphere। किस पे बात की हमने? राइट, किस पर? किसकी बात कर रहे हैं हम? Impact, consequences, right? Heterodox sects, as we discussed, right, evolved in the Mahajanpadas era, right? It was an intellectual movement which was not confined to a region only. It was worldwide phenomena at the particular time when economy, society and polity was in the period of transition at that particular time, and involvement and intellectual, क्या कहते हैं उसको, इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन, intellectual phenomena happened throughout the world, in which in India we have Mahavir, Buddha, Makhri Gosala, Purana Kashyap, Sanjay Vetliputra, right? Bhagavad Katyayan, they all thinkers. Ajit K. Kamlino, Charvak. Charvak is a thinker or philosopher. The whole Western Europe and America, they all believe in the Charvakism. Don't they believe? Yavam Jivet, Sukham Jivet. What is consumerization? यावम जीवेत सुखम जीवेत, ऋण करता करतम पीबेत, राइट, इंस्टॉलमेंट ईएमआई लोन्स, राइट, भर रहे हो। सो इट इज द लाइफ ओनली। एंड चारवाक बिल्कुल थोड़ा अलग था, बिकॉज ही वाज ऑल अबाउट द एंजॉयमेंट, जॉय, लाइफ इज जॉय, राइट। टू कंसेप्ट, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो एंड लाइफ इज फुल ऑफ द पर्सपेक्टिव। फुल ऑफ सोरो वन साइड, फुल ऑफ जॉय। सो फॉर वन, लाइफ इज फुल ऑफ सोरो, व्हाई सो? डिजायर। So what becomes siege of desire? Two people are there. One says siege of desire, second can fulfill the desire. Right? When we talk about chemistry, what happens in chemistry? We say in chemistry, orbits are there, right? In a structure of atom, we have orbits and orbitals. What is orbitals? The maximum possibility of the presence of electron in a specific place. Like it's a circular, we have a nucleus, and around we have orbits, right? Here electron is there. Electron is a moving particle, right? So the proximity, maximum proximity, right, of electron availability, this is called the orbital, right? So in this way we have different type of element, S elements, P, D, F. So what happens in these are the orbitals. S we have round, these F, I'm not going with the chemistry. What they say,
that these orbitals are there. Say in an element there are 6 electrons and there are 3 orbitals, right? How it can be stable? How it can be stable? कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि सिंपल बात है, या तो सारे भर जाए, 6 हो गए, स्टेबल, राइट, स्टेबल, या खाली हो जाए, इतना खाली हो जाए जरूरत ही नहीं पड़े। क्लियर? या तो आप प्लस हो जाओ, राइट, या आप माइनस हो जाओ। जब आप दोनों मिल जाओगे तो स्टेबल हो जाओगे, राइट। कंप्लीट ट्रांसफर। सोडियम क्या करता है, एक एग्जाम ज्यादा है, दे दिया पूरा, पीछे जो बचा फुल कंप्लीट है। एक ज्यादा था, दे दिया। क्लोरीन को एक चाहिए था, ले लिया, तो दोनों फुल हो गए, क्लियर हो गए। तो एक कह रहा है पूरा खाली कर दो, दूसरा कहता है पूरा भर दो। यू नीड टू बी स्टेबल इन योर माइंड। मैं क्या कह रहा हूं, इधर यू नीड टू एम्प्टी योर माइंड, सीज द डिजायर्स। कुछ नहीं, डिजायर करो ही मत, ये खाली कर दो। प्रॉब्लम क्या है भरने का? डिजायर्स। भरो मत, खाली कर दो। क्या करना है? सीज द डिजायर्स। डिजायर उठे ही ना। कैसे नहीं उठेगी डिजायर? जब आपका पाथ अप्रोप्रिएट होगा, राइट। जैसे आप एक सेटिस्फैक्शन का थॉट बोलते हो कि मांग के खाइबे मस्जिद में सोइबे, मांग के खाइबे मस्जिद में सोएगे, ना लेने को एक न देने को दो, राइट। अब इसको आप क्या कहोगे? अ थॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि मांग के खा रहा हूं, मस्जिद में सो रहा हूं, ना किसी को देना है ना किसी का लेना है। अ लाइफ ऑफ एम्प्टीनेस, अ लाइफ ऑफ एम्प्टीनेस, मुझे किसी से कोई नहीं है। दूसरा कहता है फुलफिल योर डिजायर्स, भर लो पूरी, राइट। या तो पूरा खाली हो जाओ या पूरा भर दो। ये आधे की प्रॉब्लम है, ये 99 के फेर मारेंगे, राइट। तो फॉर वन लाइफ इज फुल ऑफ सोरो और फॉर सेकेंड लाइफ इज फुल ऑफ जॉय। तो या तो तुम इसको मान लो या इसको मान लो, सो बोथ वर हियर। तो बोथ फिलोसॉफीज वर प्रेजेंट और प्रिवेल्ड इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, राइट। मैं यही तुमको कहना चाहता हूं। सो दीज वर देयर, जहां पर लोग एक तरफ ये है जिनके पास बहुत पैसा है, अब उनसे तुमको सारा पैसा छोड़ दो, जीवन में दुख ही दुख है, वो छोड़ेंगे क्या? नहीं, या उनको कह दो भाई बहुत है ना, अपना पैसा एंजॉय करो यार, जाओ खाओ पियो एंजॉय करो, खूब घूमो फिरो, प्लेसेस जाओ, ओके, दैट्स योर हैप्पीनेस। एक कहता है छोड़ो, राइट पाथ पे चलो, अप्रोप्रिएट रहो, किसी का लेना ना देना, दैट्स व्हाट, इट्स ओके। सो बोथ आर करेक्ट एट दैट पर्टिकुलर टाइम, पर्सपेक्टिव्स आर डिफरेंट। तो ये कह रहा है कि व्हाट आर द इंपैक्ट ऑफ दिस, इफ यू टॉक अबाउट द सोशल इंपैक्ट, राइट। In heterodox sects, the great influence were of two only. One was Buddhism and second was Jainism. दो का सबसे ज्यादा इंपैक्ट रहा है तुम्हारे पास। वन टॉक अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन, सेकंड टाइप अबाउट अप्रोप्रिएट पाथ। अब इनका सोशल प्रभाव क्या पड़ रहा है? एज वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी दैट बोथ अटैक्ड ऑन द ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, राइट। वेदर इट इज जैनिज्म और बुद्धिज्म, बोथ अटैक्ड ऑन ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। तो पहली बात, पहला क्या हुआ? यस, इंपैक्ट पहला क्या आ रहा है कि ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी, चैलेंज टू ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी। सेकंड, स्टेटस ऑफ वुमन, स्टेटस ऑफ वुमन, राइट। heterodox sects, right, already favor the gender equality. So it was the effect, it was the impact or effect of heterodox society, right, about what? The improvement of status of woman in the contemporary society. ये दूसरा। तीसरा impact, they talked about the Varna system, right, but in Varna system they oppose the birth status, right, they actually emphasize on the occupation based class system, not birth status caste system. Fourth, treatment to untouchables, हरिकेशिया एग्जाम्पल किसका है? अचंडाल गणधर, इट कैन बी,
सो इंपॉर्टेंट, इस सबको मिला के हम क्या करेंगे कि हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स एम्फेसाइज ऑन, यस, right, they gave a concept of egalitarian society which was based on equality, gender, caste, right, both, right, irrespective to class, caste and gender, heterodox sects emphasized or conceptualized an egalitarian society. ये उनका सोशल एस्पेक्ट, इंपैक्ट हुआ सोशल एस्पेक्ट का। क्लियर, बात को ध्यान रखना। सेकंड बात क्या कर रहे हैं, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स। क्या रहा इंपॉर्टेंट, बताइए, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स बताइए, बताइए बताइए बताइए। आप बताइए ट्रेड का पर क्या मतलब कि इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ये तो सोसाइटल हुआ, मुझे इकोनॉमिक एस्पेक्ट बताओ हेटेरोडॉक्स सेक्स का, कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट कांटेक्ट बिटवीन different societies as well as countries, expansion of Buddhism, right, to various countries, so they had cultural tie and cultural ties promotes economic ties, right? So the cultural contact between India and other countries gave rise to the growth of trade इन कंटेम्पररी पीरियड। उठा के देख लो, चाइना, इंडिया, म्यांमार, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इन सब के बीच में क्या बढ़ा, ट्रेड कॉन्टैक्ट, बिकॉज दीज पीपल लाइक व्हाट हैपेंस, द ट्रेवलर्स, द रिलीजियस ट्रेवलर्स केम टू इंडिया, राइट, एंड दे गेव अ विविड डिस्क्रिप्शन अबाउट इंडिया। हम पूरी बात करें 600 से 300 की, हाँ तो 300 तक तो आप मौर्य तक पहुंच रहे हो। तो आपके टाइम में मेगास्थनीज खड़ा है, एरियन, स्ट्रेबो, डेरियस, प्लिनी सब खड़े हैं। हाँ तो स्टार्टिंग है ना, तो स्टार्टिंग कैसे होगा मौर्य बिना ट्रेड रूट के? 300 साल दिए आपने, 300 ईयर्स। इन दोज 300 ईयर दिस रिलीजन हैज एक्सपेंडेड। हमें तो पता है मौर्यंस के टाइम में अशोका ने भेजे, पर उससे पहले लोग जो आए गए थे उनका क्या करोगे? डू वी हैव अशोक? बुद्धा सब जगह घूमा, इंटरनल ट्रेड, ट्रेड रूट, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड रूट, डेवलपमेंट ऑफ मोनेस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ विहारा, डेवलपमेंट ऑफ चैत्याज, क्या नहीं है? है ना? तो ये जगह जगह सराय मोनेस्ट्री का काम कर रहे हैं, रिलीजियस बिलीफ का काम कर रहे हैं। तो जब स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उनके साथ साथ ट्रेड रूट्स भी बनेंगे। ये खास बात होता है, ये सिंपल बात है कि जब आपके ट्रेड रूट्स, रिलीजियस रूट बनेंगे, ट्रेड रूट्स भी बनेगा, राइट? उसके अलावा सोसाइटी में वो लिख सकते हो आप, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट एंड आर्किटेक्चर लिटरेचर, कंट्रीब्यूशन टू आर्ट, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, मोनेस्ट्रीज, चैत्याज, विहाराज, स्तूपाज, पिलग्रिम सेंटर्स, न्यू पिलग्रिम सेंटर्स, न्यू क्या हुआ, यात्राएं नई नई शुरू हुई, उन यात्राओं पे टैक्स लगे, ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी होते थे ना। टैक्स का एग्जांपल दो मुझे, टैक्स लगता था ना, टैक्स लगता था, उस टैक्स को बढ़ाया और घटाया जाता था, रिलीजियस के हिसाब से टैक्स बढ़ाया घटाया गया है। इंपैक्ट ऑफ इकोनॉमी, बुद्धा ने बोला है लुम्बिनी के अंदर, रुमन स्तंभ अभिलेख में, कि कम कर दिया जाए, किसको? अष्टभागा, राइट, है ना? मतलब इट डिपेंड्स अपॉन हाउ रिलीजियस बिलीव्स इंपैक्ट ऑन इकोनॉमी ऑल्सो। क्लियर है? मैंने ये कहा था इंपैक्ट में पहले क्या होगा, फर्स्ट चीज आएगा इंक्रीज ऑफ ट्रेड। व्हाई सो? ड्यू टू कॉन्टैक्ट। आप कभी भी ध्यान रखो, एज आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर ऑल्सो, किस तरह के टाइज है हमारे फॉरेन रिलेशंस में,
इकोनॉमिक, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल, राइट? किस तरह के टाइज है? लाइक इन साउथ ईस्ट एशिया वी हैव इकोनॉमिक प्लस कल्चरल टाइज, वो आपकी इकोनॉमी को और मजबूत करें, बिकॉज फ्रॉम सेंचुरीज यू आर कनेक्टेड टू ईच अदर। सो इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ा? पहली बात, क्या फर्क पड़ा तुम्हारा? क्या फर्क पड़ रहा है इकोनॉमी में? हाँ, तुम समझे नहीं, ये कहां से उठ के आ रहे हैं? लगा तो पहले से था, उसने तो आधा किया है, अष्टभोग्या है। हाँ, भागा भोगा बलि शुल्का यू आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन महाजन पदार्थ, कर चुके हो। राजा को क्या बोला? क्या वर्ड आया था? जब मैं तुमको इकोनॉमी पढ़ा था, मैंने एक वर्ड बताया था, षष्ठाधिपति। षष्ठा 6, तो मैंने कहा वो छठे भाग का अधिकारी होता था, उसका नाम था षष्ठाधिपति। क्यों? क्योंकि उसको 1/6 मिलता था, उसको वो कम कर। मैं तुम्हें एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूं, व्हाट आई वांट टू टेल यू, कि व्हेन अब स्ट्रीम फ्लोज ना, इट फ्लोज विद सो मेनी थिंग्स। अशोका ने अहिंसा की बात कहां से लेकर आया? कहां से लाया? बुद्धिज्म से। तो उसकी पॉलिटिकल सिस्टम को कौन इफेक्ट कर रहा था बैकग्राउंड से? द सिस्टम, होल सिस्टम। बात कर रहे हो ना आप, वसुधैव कुटुंबकम की बात क्यों कर रहे हो इन आर फॉरेन पॉलिसी? क्यों, कहां से लेकर आए हो? द कोर ऑफ आर कल्चर, अहम निजय परोवेति गन्ना लघु चेत साम उदारचरितानाम तुम वसुधैव कुटुंबकम, कहां से लेकर आए? द कोर रिलीजियस बिलीफ, वहीं से लेकर आ रहे हैं ना। मैं यही तुम कह रहा हूं कि इफ वी टॉक अबाउट द इंपैक्ट, इफ वी टॉक अबाउट द इंपैक्ट ऑफ सेक्ट्स ऑन द होल सिनारियो, मैंने पॉलिटिको सोशल इकोनॉमी क्यों लिखा है? बिकॉज आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग ओनली, आर यू अवेयर हाउ हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इंपैक्टेड द होल पिक्चर ऑफ 600 to 300 BC? राइट? सोशल अफेक्टेड, सुप्रीमेसी चैलेंज्ड, egalitarian society concept, equality concept, concept of non-violence, concept of fraternity, right? How they prevailed in our constitution society now also. Tolerance. Ashoka talks about tolerance. बात करते हैं, कहां से आया ये वर्ड? Mauryas were not there to develop this word. This word already was there in the heterodox sects. 62 different sects were in existence ना. Tolerance तो था ही कि डायनेस्टी इज अडॉप्टिंग आजीविका, जैना एंड बुद्धा, तीनों एक के अंदर ही कर रही है ना. सो दैट थिंग कि ये सब चीजें, अब इकोनॉमी में फर्क क्या पड़ रहा है? न्यू ट्रेड रूल्स, न्यू ट्रेड कॉन्टेक्स्ट हो रहे हैं ना. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दीज हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स लाइक बुद्धिज्म फेवर द ट्रेड रिलेशंस. कैसे कर रहा है? क्योंकि श्रेष्ठी वगैरह सब इसको दान क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, राइट? अब जैसे हिंदुइज्म में तो रिचुअल्स है, रेस्ट्रिक्शन है, ये नहीं करना, इसके हाथ का नहीं खाना है, यहां नहीं जाना है, बर्थ स्टेटस है, ये आदमी यही काम कर सकता है, यहां तो फ्री है, कोई कुछ भी कर सकता है, राइट? सो इंपॉर्टेंटली दीज रिलीजन आर फेवरिंग द इकोनॉमी. सो व्हाई इकोनॉमी वाज फेवरिंग दीज रिलीजन्स? वाइस वर्सा, दीज रिलीजन फेवर्ड that contemporary economic condition. So why the economy of this particular time favored the heterodox sects? वरना एक श्रेष्ठी दान क्यों देगा? सोच के देखो, 1 करोड़ 20 लाख रुपए क्यों देगा? पढ़ा जैतवन क्यों देगा? राइट? एक मैं मेंटेलिटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं फेवरेट करने का. अ प्रोसेस ऑफ रिलीजन, अ रिलीजन विच इज बेस्ड ऑन लिबरलिज्म. लिबरलिज्म फेवर कर रहा है, आप कोई भी काम करो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप किसी को भी काम में लगाओ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कॉम्पिटेंट पर्सन काम करो, तुम चंडाल हो, तुम अनटचेबल हो, तुम शूद्र हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है. सो इंपॉर्टेंटली इन इकोनॉमी द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इफ ईच एंड एवरी, व्हाट इज बिल्डिंग इन इकोनॉमी, वी टॉक अबाउट द डेमोग्राफिक डिविडेंड. आज हम बात कर रहे हैं ना, किसकी बात कर रहे हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड. व्हाट इज डेमोग्राफिक डिविडेंड? अ सर्टेन एज ग्रुप पीपल which are able to work, right? हम बात करते हैं ना, कौन सी एज को लेके चल रहे हैं? हाँ, यूथ को लेके चल रहे हैं ना, एज को सर्टेन एज लेके चल रहे हैं कि these people are competent enough to work. So the demographic dividend is vital for the economy if you are able to utilize them. And if you are discriminate those people or you discriminate those people on the basis of your social system, what will happen? A huge amount of capital investment will cease.
will not work due to those restrictions. So these religions now there to liberate this capital in terms of human resource. Clear? Human resource, no restriction on work. Everybody can, any work कर सकता है ना. तो शूद्रा भी तुमको दान देगा, वैश्य भी दान देगा. बिकॉज वाई? नाउ यू मेक देम पीपल कॉम्पिटेंट इनफ टू जनरेट द इनकम. ये जो सिस्टम है ना, एक शूद्रा का इतना बड़ा भाग हमेशा हमारे प्रोडक्टिविटी से दूर क्यों रहा था? क्योंकि रिसोर्सेज deprivation. We talk about the poverty ना, deprivation of resources. If resources are available to each and every person, what is happening now? आप देखो हर कोई इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है. You talk about inclusive growth. What is inclusive growth? Contribution of each and every individual to the economy, right? ऐसा नहीं कि कुछ लोग दे रहे हैं कुछ खा रहे हैं, नहीं. Inclusive growth means everybody is contributing to the growth of the economy. यही वो कर रहा है, राइट? जब हर एक आदमी को फ्री किया जाएगा कि यू कैन डू एनी वर्क, वो करेगा. बट इफ यू विल सीज देम ऑन द बेसिस ऑफ सोशल नॉर्म्स, प्रॉब्लम आ जाएगा. तो दिस वाज द इकोनॉमिक एस्पेक्ट. अब बात करें पॉलिटिकल एस्पेक्ट में क्या हुआ, हाउ द इंपैक्ट. पॉलिटिकल एस्पेक्ट बताओ. हाँ, फर्स्ट, बहुत अच्छी बात की आपने. एक्चुअली दे सपोर्टेड द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम अ लॉट. डू यू थिंक क्या जैनिज्म ने, बुद्धिज्म ने क्रिटिसाइज किया महाजन पदाज को, मोनार्की को, किसी को भी? बुद्धा बिलोंग टू गणतंत्र, रिपब्लिक सिस्टम. क्लान्स दोनों का गणतंत्र है ना, तांत्रिक और शाक्य, बोथ बिलोंग टू गणतंत्र. बट दे डिड नॉट क्रिटिसाइज द मोनार्की बिकॉज उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? मोनार्की. मगध कर रहा है ना, कर रहा है ना. दिस इज द थिंग. देखो, हमने कहा पॉलिटी इज फेवरिंग रिलीजन, इकोनॉमी फेवरिंग रिलीजन, सोशल भी फेवरिंग रिलीजन. व्हाई? बिकॉज रिलीजन इज फेवरिंग दोस. इसी को तो इंपैक्ट बोला हमने. A mutual coordination, cooperation between both. Religion is favoring polity, economy, society, and they all favoring to. That is called the impact. Why? Because religion gave liberty to expand the polity, the economy, and society towards equality. बस यही इसका क्रक्स है. हाँ, balanced reciprocity. A simple example. Why people favor people? Because they favor you, you favor them. सिंपल बात है ना. एक आदमी एक पार्टी को क्यों फेवर करेगा? क्योंकि वो पार्टी उसको फेवर करती है. और यही एक पूरा साइकिल है जो तुम्हें समझना पड़ेगा. इंपैक्ट का मतलब हो गया बोथ साइड, अ सिंपल गिव एंड टेक, एक्सचेंज. और यही प्रॉब्लम आता है. If a person does not like any policy, it means it is not favored by one side. अब जैसे मान लो तुम इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी पे कुछ लिखने जा रहे हो, तुम्हें ये देखना पड़ेगा एज ए स्टूडेंट हाउ मच इट फेवर्स यू, राइट? एंड एज ए स्टूडेंट हाउ यू फेवर दैट. ये होता है कंपैरिजन का टाइप. कि गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाया, सो इन पॉलिसी व्हाट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द पॉलिसी? कि दिस पॉलिसी इज इंटेंडेड टू दिस. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, कृषि बीमा योजना किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है. अब फार्मर्स में इंश्योरेंस किसको चाहिए? हाँ, एक हेक्टर वाले को कि 100 हेक्टर वाले को? एक हेक्टर वाले को. तो हमें यह पता करना है कि कृषि बीमा योजना हाउ मच इट इज बेनिफिशियल फॉर द मार्जिनल फार्मर. हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया. अब इसको इवेल्युएट करो, डिस्कस करो. तुम्हें उसको पकड़ना होता है कि हाउ मच इट इज फेवरिंग टू दैट. और लोग इससे कितना खुश है वो तुम्हारे डेटा आ जाएंगे. बस यही कंपैरिजन इकोनॉमी है. ऑल थिंग इज अबाउट फेवर टू ईच अदर. तो ये क्वेश्चन जाके इसी फेवर पे खत्म होता है. मैं चाहता था कि आप थोड़ा सा समझो कि भाई पॉपुलराइजेशन मुद्दा क्यों हो रहा है. पॉपुलेशन एक तरफ नहीं होता, दो तरफा होता है. यू फेवर दो पीपल फेवर यू.
बुद्धा ने नहीं कहा नॉन वायलेंस एट एक्सट्रीम, बोला था क्या? नहीं, नहीं बोला ना। नॉन वायलेंस, अशोका अडॉप्टेड नॉन वायलेंस, बट नॉन वायलेंस विद सर्टेन कंडीशंस, है ना भाई। आज से क्या होगा, उसने कहा था जो अटालिक्स है, जो फॉरेस्ट ट्राइबल्स है, उनसे आज भी उतनी शक्ति से निपटा जाएगा। मैं उनके लिए नॉन वायलेंस नहीं कर रहा हूं, मैं आर्मी को डिसबैंड नहीं कर रहा हूं, राइट। नाइदर ही डिसबैंडेड द आर्मी नॉर द ऑफेंसिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट द फॉरेस्ट इनहेबिटेंट्स, कभी भी नहीं किया। अभी भी खाने में थोड़े जानवर मारना कम कर दिए पर खत्म नहीं किए गए हैं। सो नॉन वायलेंस का पर्सपेक्शन अलग है। नॉन वायलेंस का मतलब वो एक्सट्रीम नहीं है। जैनिज्म में नॉन वायलेंस चंद्रगुप्त मौर्य कब ले रहा है? कब ले रहा है साहब? कि जब सब कुछ पूरा हो गया, पकड़ाया बिंदुसार के हाथ में, लास्ट में संथारा ले रहे हैं। क्लियर? पहले नहीं लिया, पहले दिन से नहीं कहा एक्सट्रीम नॉन वायलेंस मनसा वाचा कर्मणा, न तलवार उठाऊंगा न उठाने दूंगा, नहीं। पूरा हो गया। फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू कर्नाटका, नॉर्थ वेस्ट टू कर्नाटका कंप्लीट कॉन्कर हो गया ना। तुमको उसके बाद क्या चाहिए था? एक्सेप्ट तमिलनाडु एंड केरला, बाकी तुमने ले ही लिया। इन कर्नाटका श्रवण बेलगोला was the part of the चंद्रगुप्ता मौर्य's empire। तब तुम वहां तक पहुंच गए। एक बचा हुआ बिंदुसार ने बचा वापस, तो बिटवीन टू लैंड्स तारानाथ बोलता है जीत गया। एक बचा था कलिंगा, उसको किसने ले लिया? अशोका ने। अब करो ना नॉन वायलेंस, क्या फर्क पड़ता है? तो नॉन वायलेंस विद द पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द महायानिज्म। कमेंट। हाँ हाँ 600 to 300, 600 to 300, राइट। हाँ मौर्य स्टार्ट होंगे। हाँ 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 नहीं लिखेंगे, बट आपको माइंड में रखना है कि हाउ थिंग्स एग्रीगेटेड। लुक, हिस्ट्री मैंने कहा ना, इज नॉट ए प्रोसेस ऑफ एक्यूमुलेशन, इट इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, राइट। विद द कोर्स ऑफ टाइम इट रेक्टिफाइज थिंग्स। फेवर कर रहा है, इसी फेवर ने तो आगे एम्पायर पैदा कर रहे हैं बड़े बड़े। ये सब चीजें आई कहां से? क्या तुम्हें अचानक एम्पायर बनने से ही क्या सब चीजें एडप्ट हो जाएगी? इज इट पॉसिबल? नो। अ सिस्टम ऑफ अनकल्चरेशन इनकलकेट द वैल्यूज। फ्रॉम वेयर द वैल्यूज केम? एम्पायर बिल्डिंग, स्टेट कंसेप्ट। फर्स्ट टाइम स्टेट कंसेप्ट की बात कौन कर रहा है? चाणक्य कर रहा है। द बुक ऑफ अर्थशास्त्र फर्स्ट टाइम टॉक अबाउट द कंसेप्ट ऑफ स्टेट, स्टेटमैनशिप। सप्तांग पहली बार बात कर रहा है। विजिगिसु की बात कर रहा है, मतलब दी कॉन्कर ऑफ होल अर्थ की बात कर रहा है ना। कहां से लाए? बट विद द कोर्स ऑफ टाइम दैट पर्सन ऑल्सो लिव्स एसेटिक लाइफ। चाणक्य ने खुद अपना कोई घर नहीं लिया अकॉर्डिंग टू थिंग्स। चाणक्य was the builder of the whole empire। हाँ, in the name of चंद्रगुप्ता। पीछे कौन? डिप्लोमेसी किसकी है? चाणक्य never talks about the polity, it talks about the statesmanship। ये बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स की, इट डज नॉट टॉक अबाउट द किंग और किंगशिप। हाँ बोल। हाँ, हमें यही कहना है कि हाउ द 300 years, हाउ these sects actually impacted on economy, polity and society. So they concept egalitarian, they promote the political sphere and they promoted economy। बस यही करना है। नहीं, मैंने एग्जाम्पल तुमको दिया इन फ्यूचर टर्म। इट वॉज एन एग्जाम्पल एक्चुअली। आई एम टेलिंग यू हाउ दे प्रमोटेड ट्रेड रूट्स, ट्रेड्स, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल इंफॉर्मेशन, ये सारा बात इतना बता रहा था तुम्हें। ट्रेड को उठाओ, ट्रेड उठाओ, एग्रीकल्चर को मत उठाना। ट्रेड बिकॉज ट्रेड ही सारा जो था वो बड़ा। एग्रीकल्चर तो चल रहा है, जर्नलिज्म खड़ेगा नहीं, राइट। मैं ये तुमको बोल रहा हूं, आपको ट्रेड उठाना है, राइट। ट्रेड, हाउ दे प्रमोटेड ट्रेड, कॉन्टेक्ट्स, यात्राएं, नए नए निवास, विहारास, बस इस तरह से। अब अगली बात करेंगे हम महायानिज्म। व्हाट इज महायानिज्म? क्या है महायानिज्म? 100 वर्ड्स है तुम्हारे पास में, ओनली 100 वर्ड्स।
क्या लिखोगे इसमें? आप माइथम को स्टार्ट कैसे करोगे? आइडल वर्शिप सेकेंडरी टॉपिक है, ये बाद में आएगा। कब आएगा? जब हम बात करेंगे मथुरा, गंधार एंड एच की, राइट, उससे बात कर। अभी बताओ उसका बेस क्या है? कोई हमें जीनोसाइड का इजाजत दे दे, हम सामूहिक नरसंहार करेंगे तुम लोग। एक्चुअली Mahayanaism concept is based on बुद्ध एंड बोधिसत्वा, वर्शिप ऑफ बुद्ध एंड, वर्ड क्या है? वर्शिप क्या है? यस, दैट वाज नॉट इन बुद्धिज्म। बुद्धिज्म में वर्शिप कंसेप्ट नहीं है। आपने क्या बोला? दो आइडल वर्शिप नहीं, आइडल का नाम नहीं। इट इज ऑल अबाउट द बुद्ध एंड बोधिसत्वा, बुद्ध एंड बोधिसत्वा, पहला वर्ड। Mahayanaism is based on Buddha and Bodhisattva, right? And worship was the way to attain the, yes, not by the Ashtangic Marga or self approach. या self कुछ भी नहीं बचा, बचा क्या? Devotion, बचा क्या? Worship, right? So Buddha and Bodhisattva became the God, and the God concept of Buddha, the God concept of बुद्धा। सो गॉड कंसेप्ट फर्स्ट थिंग, वर्शिप कंसेप्ट दूसरा, बुद्ध एंड बोधिसत्व तीसरा। हियर बुद्धा, बुद्ध एंड बोधिसत्व के पास दो चीजें, क्या? कंपैशन एंड विजडम। दो वर्ड है, कंपैशन एंड विजडम, दो वर्ड को साथ में रखोगे, राइट? एंड द होल सिस्टम, द हेवन कंसेप्ट, बुद्ध कंसेप्ट, बोधिसत्व कंसेप्ट, राइट? एंड द लैंग्वेज वाज संस्कृत, right? And when it happened, the fourth Buddhist council, Mahayanism, right? And it believes in Buddha and Bodhisattva. And Bodhisattva कौन है? They are about to get the nirvana, but they will not get nirvana until the last man of earth does not attain the nirvana. So a new concept of Buddha and Bodhisattva. And उसके बाद उसका एरिया बताया आपने, बस 5-10 वर्ड, राइट? एरिया, देन उसके बाद में एंड Mahayanaism में वी हैव 2 सबसेक्ट्स, 2 स्कूल्स। फर्स्ट इज माध्यमिका एंड सेकंड इज योगाचार। माध्यमिका किसके द्वारा है? कंसेप्चुलाइज्ड बाय नागार्जुना, शून्यवादा, राइट? एंड सेकंड वाज योगा, कौन सी है? मैत्रेयनाथ, मेडिटेशन, राइट? निर्वाणा थ्रू, राइट, मेडिटेशन। और एक दिन लाइक अवलोकितेश्वर, आचार्य मंजूश्री, राइट? दीज वर द बोधिसत्व। पद्म पाणी, अवलोकितेश्वर, पद्म पाणी, राइट? तो ये हुआ 100 वर्ष महायानिज्म, राइट? टैक्सेशन महायानिज्म में दवाई ले तू, तेरा बुखार चढ़ गया, तेरे को मेनिंजाइटिस हो गया, तेरा दिमाग में चढ़ गया तेरा बुखार। प्रभु, टैक्सेशन से नहीं, टेक्स्ट और टैक्सेशन में फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन जैनिज्म। कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इन जैनिज्म, क्या कंसेप्ट है बताइए? सही तो कह रहा है ना? आश्रव, बंधा, समरा, निर्जरा, निर्वाणा, सही तो कह रहा है वो? गलत थोड़ी कह रहा है। इतना भी नहीं चढ़ा भाई, कुछ याददाश्त वाक्य। हाँ, now what is the nirvana for? Like if you start with the nirvana concept in Jainism, how will I say the nirvana in Jainism? कैसे बोलेंगे? What is nirvana Jainism? What is nirvana? निर्वाणा मीन्स क्या है? अटेनमेंट। क्या अटेनमेंट ऑफ नॉलेज है? मैं दोबारा पूछ रहा हूं। लाइक व्हाट इज निर्वाणा फॉर बुद्धिज्म? अटेनमेंट ऑफ एनलाइटमेंट। क्लियर है? व्हाट इज निर्वाणा फॉर जैनिज्म? अ कंसेप्ट ऑफ फ्री सोल। तुम दोनों में समझो, लिबरेशन, कंसेप्ट ऑफ फ्री सोल थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्म। बट उसके लिए तुम्हारी क्या होना चाहिए सिस्टम? उसने कहा था
क्या कहा था? बुद्धिज्म क्या बोलता है? अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा का मतलब अटेनमेंट ऑफ इनलाइटमेंट। बुद्धिज्म इनलाइटमेंट की बात करता है, प्रबोधन की बात करता है। जैनिज्म किसकी बात करता है? लिबरेशन, राइट? लिबरेशन ऑफ किसका? सोल थ्रू डिस्ट्रक्शन ऑफ कर्मा। अब तुमने कहा कि इन जैनिज्म द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इज एसोसिएटेड विद द डेथ, राइट? अ पर्सन कैन अटेन निर्वाणा थ्रू डेथ ओनली। अब इसमें तुलना नहीं है तो बुद्धिज्म का नाम लिखो कि 100 वर्स है। सो टू अटेन निर्वाणा वन हैज टू परफॉर्म व्हाट? निर्जरा संथारा, a process to destruct the karma which start with the asrava, bandha, samara, nirjava and moksha. And after death he will call that the individual is called as siddha, and that soul will go to siddha. क्योंकि इनमें क्या कहता है? ये कहते हैं कि everybody is a free soul but due to the karma, right? Due to karma, due to the attachment of karma, problem is there. A bandha start, bandhan, bondage, and to release bondage, destruction of karma. बस यही निर्वाण का कंसेप्ट है बुद्धि जैनिज्म के लिए। द कंसेप्ट ऑफ निर्वाणा इज एसोसिएटेड विद द फ्री सोल कंसेप्ट। अ जीवा, a free soul is with bliss, energy and conscience, but it becomes bind, and when it becomes bind with the karma, right? उससे क्या हो जाता है? It deviates from that consciousness, bliss and energy. So to be free soul again, destruction of karma is necessary, and this freeness, attainment of this freeness is called as nirvana, and the process is samara and nirjara. And after death, and it can be attended with the death only, and after that a person will go to siddha loka as a siddha or a free soul. ये तुम्हारा concept of nirvana in Jainism, right? Any doubt? Very good. हाँ बेटा, हाँ जक्सीस, कांच खोलू? दे दे उसको दे। मुझे पूछ ले, ऐसे ही पूछ ले, उसकी क्या जरूरत है मुझे? क्वेश्चन यहाँ है, पूछ। क्वेश्चन बोल, क्वेश्चन, नंबर मत बोल, क्वेश्चन बोल, नंबर मत बोल। बोलो। है? नहीं है। चल तीन और दो और बोल। नहीं, नहीं ले सकता। ये भी नहीं ले सकता। हाँ, और बता, और बताओ। पब्लिक सर्विस रिटायरमेंट के बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, बट विद इन पब्लिक सर्विस एज वी डिस्कस, नहीं, गवर्नमेंट को नहीं लेगा, लेप्रोसी को नहीं लेगा। कुछ पूछना बिटिया? हाँ हाँ, नहीं लेगा। क्रिमिनल को नहीं लेगा, कन्विक्शन को नहीं लेगा। जैसे सिंपल बात हो, पार्लियामेंट में बात कराओ, if a person is convicted एज ए क्रिमिनल, क्वालिफाई नहीं होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा ना। अगर वो 2 साल जेल की सजा काट के आ चुका है तो कंटेस्ट कर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है? पूलन देवी जी, कर सकता है ना? कर सकता है। अगर आपको
व्हाटएवर, अगर आपने कुछ भी किया, अगर आपने अपने आप को पूरा अपना वो कर लिया है, आपका पूरा पेनल्टी हो चुका है, कन्विक्शन हो चुका है, तब आप आराम से, बिकॉज नाउ यू आर सिटीजन, आपने जो किया था भोग लिया, हो गया। कि अभी यही तो प्रॉब्लम इंडिया के साथ में, अभी हमारे जितने भी है ना, हम बात करते हैं ना क्रिमिनलाइजेशन पॉलिटिक्स में, इन पर केस चल रहे हैं, कन्विक्टेड नहीं है। एक जगह कन्विक्टेड होते हैं, दूसरे के अपील लगा देते हैं, राइट। जैसे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने पानी भरा तो सुप्रीम कोर्ट बड़ी नाराज हुई कि फर्स्ट यू गो टू हाई कोर्ट, वाई डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। पानी को बोला पहले हाई कोर्ट जाओ फिर हमारे पास आओ, सीधा हमारे पास कैसे भर गए हो। मजाक कर रहा हूं यार। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो इंपैक्ट कंप्लीट, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन इन महाजनपदास? बुद्धा जैनिज्म वेरी मच इंपॉर्टेंट बेटा जी, वेरी मच इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू अगेन, वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज यूपीएससी एम्फेसाइज अ लॉट ऑन दी कल्चर ऑफ द सोसाइटी। कल्चर पे बहुत एम्फेसिस करेगा। कल्चर मीन्स आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, रिलीजन, बिलीफ सिस्टम, राइट। ये सब कल्चर का मतलब होता है दोनों, आर्ट, आर्किटेक्चर, लॉ, कस्टम, ट्रेडिशन, बिलीफ, इसमें कुछ भी ये सब मिलके कल्चर बनता है। कल्चर का मतलब सिर्फ आर्ट आर्किटेक्चर नहीं होता, बिलीफ, मोरल्स, कस्टम्स, ट्रेडिशन। हम स्टेटस ऑफ वुमेन की बात क्यों करते हैं, स्टेटस ऑफ कास्ट सिस्टम की बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे ऑल आर द पार्ट ऑफ कल्चर, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड फंक्शनल एस्पेक्ट, दोनों को ध्यान में रखना है हमको, राइट। हाँ बिल्कुल बनेगा, एक्सप्लेन नहीं करना काउंसिल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आउटकम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होते हैं। और बाकी फैक्ट जैसे आपसे पूछ लिया कौन सी काउंसिल में जैसे क्या हुआ, राइट, दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ वी मूव टू दी 300 BC।